Hello student. In this video lecture, we are studying the second phase of the photosynthesis, which is popularly known as the dark reaction. Dark reaction is taking place in the stroma part of the chloroplast. We know that chloroplast having two main parts, stroma and grana. What is stroma? Stroma is a ground substance which is included by the inner membrane of the chloroplast. So this ground colorless fluid is known as stroma, and you know that stroma contains four different components. These four components are DNA, and this DNA is circular, double-stranded and naked DNA. This DNA is responsible for synthesis of half of the protein for the chloroplast. That's why chloroplast is called as semi-autonomous organelle. इसके लिए आपको मेरा वो वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको पूरा डिटेल पता चलेगा। स्ट्रोमा में सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट होता है आरएनए, तीसरा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है राइबोसोम 70S टाइप, और चौथा आखिरी कंपोनेंट होते हैं एंजाइम। ये काम की बात है कि स्ट्रोमा में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर नेसेसरीली रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डार्क रिएक्शन. So this dark reaction does not happen without enzyme. They necessarily require the presence of enzymes, and all the enzymes are present in the stroma part of the chloroplast. Then these thylakoid membranes are forming the group which is called as grana, and grana is responsible for light reaction. These are connected with each other by fret membrane. So these grana are responsible for light reaction, and ground substance is responsible for the dark reaction of photosynthesis. Dark reaction of photosynthesis is also known as Blackman's reaction. Blackman's reaction, because Blackman first discovered the process of dark reaction. Now, what is the main criteria of the dark reaction? In dark reaction, देखिए लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए थे, हम स्टडी करने जा रहे हैं कि उन प्रोडक्ट और डार्क रिएक्शन के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप हो सकता है। तो दिस इज सपोज डार्क रिएक्शन, एंड हियर इज light reaction, and here is a dark reaction. Okay, light reaction having two photophosphorylation, cyclic and non-cyclic photophosphorylation. ATP produces in both cyclic as well as non-cyclic. So this ATP is produced out from the light reaction, and the same ATP molecule is goes and used up in the dark reaction. ATP प्रोड्यूस कहां से हुआ? लाइट रिएक्शन से, और वही ATP डार्क रिएक्शन में जाने के बाद कंज्यूम हो गया। तो किस तरह से कंज्यूम करेगा डार्क रिएक्शन? आप जानते हैं कि ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कितने फास्फोरस है टोटल? 3 फास्फोरस में से एक फास्फोरस का बॉन्ड ब्रेक होगा, एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी डार्क रिएक्शन अपने अंदर रख लेगा। तो यहां पर ATP के 3 फास्फोरस में से तीसरा आखिरी फास्फोरस ब्रेक डाउन हो जाता है, तो बचे कितने फास्फोरस? 2। इसीलिए डार्क रिएक्शन से बच जाता है ADP। एक फास्फोरस ब्रेक हो गया और उसका एनर्जी डार्क रिएक्शन में रिक्वायर्ड हो गया, and same ADP is now enters in the light reaction for the production of ATP. ये साइकिल अब कंटिन्यू होती जाएगी। ADP लाइट रिएक्शन में आएगा,
फिर एटीपी में कन्वर्ट होगा, फिर एटीपी डार्क में जाएगा, 3 फास्फोरस में से एक फास्फोरस का बॉन्ड ब्रेक होके एनर्जी यूज्ड अप हो जाएगी, फर्दर एडीपी फिर जाएगा लाइट रिएक्शन में. दिस इज वन केस, दैट इज एटीपी. नाउ सेकंड इज regarding the NADPH2, which is only produces in the non-cyclic photophosphorylation, which is a part of light reaction. तो लाइट रिएक्शन का कौन सा पार्ट? नॉन साइक्लिक पार्ट. नॉन साइक्लिक से कौन प्रोड्यूस हुआ? NADPH2. दिस NADPH2 emitting out from the light reaction goes in the dark reaction. NADPH2 कहा गया भाई डार्क रिएक्शन में. डार्क रिएक्शन NADPH2 का H2 कंज्यूम कर लेगा, ये H2 रुक जाएगा डार्क रिएक्शन में और बचेगा क्या? NADP. So this NADP molecule remaining from the dark reaction get exit out and re-enter in the light reaction. फिर NADP लाइट रिएक्शन में जाने के बाद वाटर का फोटोलाइसिस करके हाइड्रोजन रिसीव करेगा, फिर बन जाएगा NADPH2, फिर हाइड्रोजन ले जाकर देगा डार्क रिएक्शन में, फिर खाली बच जाएगा NADP. तो ये साइकिल मोर एंड मोर टाइम्स रिपीट होती जाएगी. हमको यहां पर ये पॉइंट सीखने को मिला है कि लाइट रिएक्शन से दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बनते लाइट रिएक्शन में हैं लेकिन उनका यूज्ड होता है डार्क रिएक्शन में, यूटिलाइजेशन होता है डार्क रिएक्शन में. सो दिस इज द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ डार्क रिएक्शन ऑन लाइट रिएक्शन एंड लाइट ऑन डार्क. दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. कैसे डिपेंडेंट है? कि डार्क को लाइट से क्या चाहिए? एटीपी और NADPH2. इसी मैनर में लाइट रिएक्शन को डार्क रिएक्शन से क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, एंड दिस रॉ मटेरियल आर NADP एंड ADP. So this is the interrelationship between light reaction and dark reaction. Now we are going to discuss more detail about the dark reaction as it takes place in the stroma part of the chloroplast. The most important principle of the dark reaction is reduction of carbon dioxide, reduction of CO2, and reduction is also called as fixation. ये रिडक्शन वर्ड के लिए एक और अल्टरनेट वर्ड होता है फिक्सेशन. रिडक्शन का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं 8, 9, 10th में बेसिक केमिस्ट्री में आपका हुआ होगा कि किसी भी सब्सटेंस में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो सब्सटेंस हाइड्रोजन के एडिशन की वजह से रिड्यूस हो जाता है. तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को ऐड करना, इस प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं. यहां पर रिडक्शन किसका होने जा रहा है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का. यानी आपको हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में. तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड एज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि आपको हाइड्रोजन ऐड करना है. हाइड्रोजन कहां से लाएंगे आप? हाइड्रोजन ये NADPH2 ला करके देगा और ये सेम हाइड्रोजन आपको ऐड करने पड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में. सेकंड बेसिक थिंग, वेरी बेसिक थिंग, फ्रॉम वेयर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? A very simple answer. Carbon dioxide is entering in the leaf from the atmosphere. एटमॉस्फेयर में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03% अप्रोक्सीमेटली एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. लेट अस कंसीडर दिस इज लीफ. ओके, तो लीफ का जो अपर सरफेस होता है, इस अपर सरफेस के ऊपर और लोअर सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के सेल होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा का मैक्सिमम क्वांटिटी लोअर सरफेस पर होता है और अपर सरफेस से बहुत कम, ना के बराबर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. तो खैर, स्टोमेटा ओपन होता है, ये एक सुराख के जैसा, होल के जैसे स्ट्रक्चर है, और इस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में पेनिट्रेट कर जाएगी. तो स्टोमेटा का जो होल है वो लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पेनिट्रेट करता है और उसी होल के थ्रू वाटर वेपर्स लीफ में से बाहर निकल जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे. पहले हमको देखना है
कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इंटर इन द लीफ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है, लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और लीफ में आने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रास्ता चाहिए, वो रास्ता कौन प्रोवाइड करके देगा? स्टोमेटा सेल। तो आपको ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड पेनिट्रेट इन द लीफ, पेनिट्रेट यानी दाखिल होना, कार्बन डाइऑक्साइड पेनिट्रेट इन द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। अब लीफ का एनाटॉमी हमने स्टडी किया था, पेलिसेड पैरेन्काइमा होते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं, आप पीछे के वीडियो लेक्चर में जाकर के वो एक बार देख सकते हैं। और उसी पेलिसेड पैरेन्काइमा में प्रेजेंट है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पेनिट्रेट हो जाएगी। नाउ एज कार्बन डाइऑक्साइड गेट एंटर इन द स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, this carbon dioxide is received by a 5 carbon sugar which is already present inside the stroma। ये जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा में ऑलरेडी ये एक केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है। ये क्या है? इसका एक बेसिक नाम बता रहा हूं मैं आपको, बल्कि नाम भी नहीं है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी है कि इस केमिकल में 5 कार्बन है एंड इट इज वन ऑफ द शुगर, इट इज 5 कार्बन शुगर। तो ये 5 कार्बन शुगर कब से कार्बन डाइऑक्साइड का इंतजार कर रही थी कि कब कार्बन डाइऑक्साइड आती है और कब मैं उसको कैप्चर करती हूँ। अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो 5 कार्बन शुगर ने इसको अपने पास में कैचअप कर लिया, एडिट कर लिया। तो देखिए इस कंपाउंड के पास में 5 कार्बन और CO2 के पास में अपना 1 कार्बन, तो ये दोनों जब एक दूसरे में एड अप हो जाएंगे तो कितने कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा आपको? 6 कार्बन का प्रोडक्ट। यहां से स्टार्ट होती है आपका डार्क रिएक्शन। लेकिन इस डार्क रिएक्शन में बहुत सारी स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसमें कार्बन फिक्सेशन मैकेनिज्म्स हैं और इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि डार्क रिएक्शन का डिटेल मैकेनिज्म कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, कौन से ऑर्गेनिज्म में से डिस्कवर किया, कौन सी टेक्निक उसने यूज किया, कार्बन डेटिंग के कौन से फ्रेगमेंट यूज किया, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के आप ये सारी चीजें एज इट इज नोट करके अपने पास में आपका एक स्टडी मटेरियल क्रिएट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।